Well, hi everyone. I'm Sana Maqbool. I'm an Indian television actress. I think the acceptance is the key. You need to accept that you are a patient. I am an autoimmune hepatitis patient. Uh, it's been 3 years I've discovered it. Like भूमि मैंने इसको इतने अच्छे से नहीं लिया था. I would say जब मुझे डिटेक्ट हुई थी ये डिजीज़ तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये है क्या. मैंने गूगल किया. मैंने सबसे पहले वर्स्ट चीज़ सोची कि अरे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. बट द बेस्ट थिंग वॉज कि लिवर डिजीज़ का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि दारू पीती होगी, ये होगा. बट नो, आई एम अ नॉन अल्कोहलिक पेशेंट. मैंने लाइफ में अपनी कभी ना एरिएटेड ड्रिंक्स भी नहीं पिए होंगे. कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट. नो, आई डोंट डू एनीथिंग. बट स्टिल, व्हाई मी? बट आई थिंक आई टुक इट in a very sporting way, and I ran some tests, and this thing was detected. I went to an XYZ doctor. उन्होंने तो मुझे डायरेक्टली ऐसा बोल दिया था कि आप दवाई खाओ और आ जाओ. हाँ, थोड़ा लिवर में प्रॉब्लम है. And me and my sister, we were like, यार he didn't explain us anything. What exactly was wrong? Then somewhere I was not convinced, and I was like, no, I need to take a second opinion, and that's how I met Dr. Akash Shukla. Where I think he checked all my reports, did our CT scan, everything he checked, and he made me understand. Okay, you are at this stage. अभी हमको इसको cirrhosis पे convert नहीं करना है. We have to maintain. You have to live a normal and a healthy life. And I think that was his brief to me. And since that day, मुझे ऐसा था कि हाँ चलो दवाई खा लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे. But no, but the steroids, the medicine, it kind of थोड़ा अलग वे से मुझे mentally, emotionally, physically weak कर रही थी. I went for this show. It's called खतरों के खिलाड़ी. Every day I used to pop up pill, steroids, immunosuppressant. और मेरे को इतना difficult show, मतलब वहाँ पे physical आपका बहुत important होता है. मैं दवाई खाती थी, मैं stunt करती थी. And by the time I'm back home or back to my hotel, I was drained. Like physically I was drained. मुझे bruise है ये है, but मैं थक जाती थी. So I think there came a point जब मैं वहाँ से वापस आई, and I stayed there now for a very long time. मैं वहाँ से जब वापस आई तो I think I didn't consult anybody. I was so bored popping everyday pills, and मैं थक गई थी बस. So I think I stopped my medicines, and that was the time where everything was smooth. I was stable with my LFT functions, but that one incident took a toll on me. And I think I just stopped. After 1.5 months, I'm going visiting doctor, and I'm like, मैंने 1 महीने के लिए दवाई नहीं खाई. And he's like, why? Why would you do that? Who asked you to stop? And I'm like, doctor, I was so bored, so done. Just I was so being careless, and I think that was the time where he told me, no, listen, you can't do that. You cannot take this decision on your own. You need to be really taking care of yourself. You can't do this. And I think that was the time he told me, मैं तुम्हें autoimmune के group में डालता हूँ अगर तुम्हें mentally disturb कर रहा है तो. But I think that time until date, I have shown improvement. I was in F3, F4 stage. I have reversed it to F1, F2 stage, which is an improvement. And trust me, mentally, emotionally, physically, I was not depressed, but I don't know, somehow there were days when I don't want to get up. In the profession I am in, you wake up with your face bloating, your hands swollen, your feet, you have water retention on your body. Every day you're facing criticism where people are like, "Arey moti ho gayi hai." Oh, like it used to hit me very hard because I'm an actor. मेरा profession है, ये I have to look a certain way, I have to maintain a certain way, and I think last 1.5 years I've just given it to myself. I was like, no, I need to. If I want to live long, I need to take care of myself, and I think I did that. I went to retreats, I went to naturopathy centers, I started consulting a nutritionist to, what I eat is what you are. This is what I feel. And doctor was always there, I think monthly routine checkups, your blood tests, everything. But as I say this, I would like to conclude it that it was not easy. But when you say this, that if there's a way, if there's a will, there's a way. So I think I proved it to myself, and I love challenges. So I challenged it कि नहीं भैया सही
करके रहूँगी अपने आप को. So I think yeah, that's more important. कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को, डॉक्टर सबसे ज़्यादा आपको, क्योंकि ऐसे पेशेंट मिलना बहुत बड़ी बात है. बीमारी को साइड में रख के दिमाग को पॉजिटिव रखना ये सबसे बड़ी बात है. तो क्या कहना चाहेंगे इनके साथ एक्सपीरियंस, और ये जो बीमारी हम बोलते हैं बीमारी तो नहीं है बट उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे वो हमें ज़रा बताएं. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो डॉक्टर तो सब पेशेंट्स को सेम दवाई देता है और सेम ट्रीटमेंट देता है, पर हर कोई जो है उसको सेम रिस्पांस नहीं मिलता. और इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, पर उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि उस पर्सन का, उस पेशेंट का खुद का फेथ, ट्रस्ट डॉक्टर में कितना है, ट्रीटमेंट में कितना है, और वो कितना सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को फॉलो करता है. तो जैसा बहुत नॉर्मल है कि बीच बीच में आदमी बोर होता है, पर उस बोरियत के बाद खास करके जिसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है जिन बीमारियों में, उसमें ये बहुत कॉमन है कि आदमी थक जाए, बोर हो जाए, कुछ और ट्राई करे. पर जिनको फेथ होता है, जो प्रॉपरली लेते हैं, वो अपने बीमारी से जीतते हैं, और ये हमने कंसिस्टेंटली देखा है. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपको फर्स्ट टाइम ऐसे डायग्नोस हुआ कि मुझे ये है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट केम इनटू योर माइंड? क्योंकि जैसे कि आपने कहा मैं टीवी एक्टर हूँ तो मुझे अच्छे से रहना है, हर एक चीज़ को फॉलो करना है, तो कैसा जर्नी रहा आपका? You know when इनिशियली जब मुझे पता चला, सो फॉर मी इट वाज, मैं तो सबसे पहले वर्स्ट सोचती हूँ. तो आई थिंक मैंने आई केम विद अ थॉट टू हिम कि ट्रांसप्लांट तो नहीं करना पड़ेगा ना. सो आई थिंक एंड देन ही टोल्ड मी, इज लाइक नो, राइट नाउ यू डोंट नीड इट, योर लिवर इज़ हेल्दी. एंड एक ह्यूमन बॉडी में जितनी इम्पोर्टेंस चाहिए रहता है लिवर को, उतना यू आर गुड, सो डोंट वरी. बट आई एम हियर to give you a normal lifestyle. So I think that was his confidence towards my treatment, and I was also confident कि चलो I'm in good hands. जहाँ मैं प्रीवियस मेरे जो डॉक्टर थे, जहाँ मैंने ये डिजीज़ डिटेक्ट करी थी, ही कुडंट एक्सप्लेन मी एग्जैक्टली. है ना, हम आज के जनरेशन के बच्चों को सब जानना होता है. लाइक गूगल हमारा नॉलेज है. जो कुछ बोला फर्स्ट मैंने गूगल किया, एंड देन आई थिंक डॉक्टर एक्सप्लेन मी ब्रीफली, थरली, प्रिसाइजली कि व्हाट स्टेज यू आर ऑन, हाउ टू डील विद दिस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, क्या डूज है, क्या डोंट्स है. तो आई थिंक उन्होंने मुझे बैठ के 1.5 आवर्स एकदम पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था. एंड देन आई वॉज केप्ट ऑन मेडिकेशन. एंड या, तो आपको कभी ऐसा मतलब डीमोटिवेट कभी ना कभी हम हो जाते हैं कि हम इतने मेडिसिन ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, फिर कोई कुछ बीच में टोक देगा कि हाँ ये हम खा रहे हैं तो मैं बहुत बीमार हूँ, तो कैसे उस चीज़ को आपने कैसे हुआ? सी आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हियर, मैं बहुत बीमार नहीं हूँ. आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग लाइक दैट. बट येस, वो जो एक मेडिसिन खाना वाला चीज़ होता है, मैंने उसे इतने स्पोर्टिंगली नहीं लिया, क्योंकि एवरी डे यू हैव टू पॉप अ पिल, एवरी डे. एंड इट्स नॉट अ पिल, इट्स अ स्टेरॉइड. स्टेरॉइड है, इम्यूनोसप्रेसेंट है. आपके दिमाग के साथ, आपकी बॉडी के साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं. सो आई थिंक जब जब मैं वो फेज़ से गुज़रती हूँ, तब तब मैं डॉक्टर से आके बात करती हूँ. मैं अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती, बट मेरे जो दिमाग में चल रहा होता है कि डॉक्टर दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, डॉक्टर मेरे को आज नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, आई एम नॉट मेंटली डूइंग गुड. एक हफ्ते से मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ. देयर आर डेज लाइक वेयर आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ माय रूम, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग ओके. इट्स नॉट दैट आई एम डिप्रेस्ड और समथिंग. आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, बट आई जस्ट डोंट फील लाइक इट. लाइक मुझे पता नहीं, एंड देयर आर टाइम्स डॉक्टर, मैं उनसे पूछती हूँ, डॉक्टर मेरे हाथ सूझे, मेरे पैर सूझे, मेरा वेट गेन, आई एम गेनिंग वेट, क्या करूँ, बट क्या करूँ. सो आई थिंक यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करूँगा, ये जो इनके इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रेशर होता है वेट मेंटेन का. तो ये जो बोल रही है कि वेट गेन, वो 1.5 किलो वेट गेन था या 2 किलो वेट गेन हुआ था. सो जब ये तब इसको लोग टोक देते थे कि तुम बहुत मोटी दिख रही हो, एंड दैट एडवर्सली अफेक्टेड हर. सो शी डिड हैव फ्लक्चुएशंस इन बिटवीन. और उस समय हमको रीअश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि ये पार्ट एंड पार्सल है, और हम कितनी भी दवाइयाँ लें, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होंगे. एंड यहाँ पर मैं इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दे शुड लुक एट इट एज just not that the actors or actresses are just commodities. I think they are human beings and we should respect them as human beings. आप किसी शो में भी कर रहे हो तो भी जैसे नॉर्मल पर्सन थोड़ा सा कभी 2 किलो वेट गेन करता है, 2 किलो वेट लॉस करता है,
ऐसे ही शोज में भी अगर कोई पर्सन 2 किलो वेट गेन या वेट लॉस करे तो आई थिंक इट शुड बी एक्सेप्टेड. एवरीबडी और एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट इन लाइफ एंड आई थिंक इट इज़ दैट एक्सेप्टेंस कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, ये बहुत ज़रूरी है. सो डॉक्टर आपसे पूछना चाहूँगी, जब सना आपके पास आती है, जब बोलती है मुझे ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, तो मेडिसिन के अलावा आप उससे मतलब अब उन्हें क्या बोलते हैं? मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे आपने कहा एक्सरसाइज ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो ये पार्ट तो वो मुझसे ज़्यादा करती है. आई थिंक मेरे मेंटल स्टेबिलिटी को कोई बंदा अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है तो वो डॉक्टर है. बिकॉज आई मे नॉट टॉक टू माई मदर वॉट एम आई गोइंग थ्रू, यू नो, बिकॉज डॉक्टर कमिंग, यू नो, ही इज़ अ डॉक्टर, ही नोज़ कि ये मेडिसिन से ये चीज़ होगी. लाइक जब मुझे आई रिमेंबर हमने जब हाई डोसेज ऑफ स्टेरॉइड स्टार्ट की थी, डॉक्टर ने मुझे प्रोज एंड कॉन्स क्लियरली बताए थे कि सना मूड स्विंग्स होंगे, यू विल गेन वेट, सो बी प्रिपेयर. So mentally he made me strong from here कि नहीं, you will go to situations like this, so you be ready. And I was like हाँ ठीक है, because you know I was like 57 58 kg girl. I was like हाँ ठीक है देख लेंगे. There came a point where ज़्यादा हो गया था ना. I was like डॉक्टर, मैं फर्स्ट भाग के डॉक्टर के पास आती थी, सर डॉक्टर क्या करूँ. तो आई थिंक मेरी मेंटल स्टेबिलिटी को अगर किसी ने समझा है अच्छे से तो वो डॉक्टर है. आपसे पूछना चाहूँगी आपका जर्नी कैसे रहा, और आप तो इतने पॉजिटिव है ही, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो से समथिंग. सो पहले तो भी बोला था ट्रांसप्लांट करने का, और लाइक पॉसिबल ही नहीं है, मैं इतनी फिजिकली ऑर्डर, आई कैन डू एवरीथिंग लाइक यू ऑल डू. सो आई वाज लाइक नहीं, कुछ तो होगा, रिपोर्ट बेटर होगी, नहीं होगा ट्रांसप्लांट. टिल द वेरी एंड डेट बिफोर ट्रांसप्लांट आई वाज लाइक आई नीड टू हैव वन लास्ट रिपोर्ट. आई एम श्योर ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है, बट दैट इज वॉट द ऑटोइम्यून डिजीज आर. सो आई वाज लाइक ओके, अभी कोई ऑप्शन नहीं है. आई वाज इन दैट सैड, इट्स फाइन. But how did you? I have one question for her because I am really hats off to you what you've gone through. I can relate to it, but how did you feel? Like इतनी medicines. हाँ, मेडिसिन वर अ प्रॉब्लम बिकॉज एक्चुअली वो सुबह 7 बजे उठना पड़ता फर्स्ट ऑफ ऑल. टाइमिंग मेरे 7 o'clock के थे, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम. अपार्ट फ्रॉम दैट साइड इफेक्ट्स मेरे को अभी तक तो कोई ऐसे फील नहीं हुआ है, सो आई एम गुड विथ इट. बट यार मेडिसिन सीम्स वेरी बोरिंग. बट उससे अभी प्री ट्रांसप्लांट में मैंने इतना सब कुछ देख लिया ना, तो पोस्ट ट्रांसप्लांट अभी एटलीस्ट आई इन बेटर कंडीशन, सो आई जस्ट यूज टू इट नाउ. You know, looking at her, I feel so proud. She can inspire so. Like आज मैं जब आई थी, मुझे अपने आप के लिए ऐसा लगता था कि why me? She gave me so much of positivity today. Really, I'm really thankful, doctor. Thank you and thank you, Bhumi. Yeah, that's what, why me? I was also mad at God, like why just me? What did I do? But then there was some healing therapy where I met her Didi. So she showed me the pros also. So even though this all happened, I was able to attend my farewell. I was able to give exams. I scored good marks. I was able to attend the last day of my school. And I got the best doctors. So I was all grateful too. So she showed me the good side, and I was like, okay, thank you God for this too. So that was that. सना आज Yeah, I got the award. Yeah, today was the first day of my college. I'm in Mithaibai right now. So I was going to miss it because I need to come here. So I was kind of sad. But thank God the rain was extremely raining. So it छुट्टी हो गया. yeah. So I got saved from wasting my first day. सना आप खुद इतनी फिट हैं, तो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर बाकी इंडस्ट्री में किसे फॉलो करती हैं तो फिटनेस को लेके? सर है, मैं फिट थी, बट जब से मुझे ये डिजीज डिटेक्ट, टच वुड, थैंक यू सो मच, आप ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो आई थिंक आई वुड टेक इट इन अ वेरी गुड वे. आई वर्कड हार्ड. मैंने अपने डाइट से लेके आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट. डाइट बोलो, जो बंदी इतना वर्कआउट नहीं करती थी, तो आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस. मोर देन वर्किंग आउट, मैंने अपने दिमाग को शांत करना, मेडिटेट करती हूँ, योगा करती हूँ, अच्छा खाती हूँ. जो आज सर ने एक्सप्लेन किया था, आई थिंक उस सब की चेकलिस्ट में ऐसे देख रही थी, हाँ मैं ये करती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मेरे फूड में ये होता है, ऐसा होता था. आई थिंक आई फॉलो ऑल दैट. किसी को फॉलो करती कि नहीं आप, मतलब जो आपको इंस्पायर करे, मतलब इंडस्ट्री में? सर इंस्पायर करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के आपको ऐसा लगता है कि हाय मेरी बॉडी भी उनकी जैसी होती, बट उनमें और आप में फ़र्क होता है. उनकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है. सो आई थिंक मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि ये बीमार है, तो ये दोनों कोई बीमार नहीं है. ये दोनों आज एब्सोल्युटली नॉर्मल और हेल्दी हैं.
एंड ये हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कोई भी और दूसरा कर सकता है विदाउट एनी दिस थिंग, एक्सेप्ट कि इनको 1-2 गोलियां रोज की खानी पड़ती हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे आर डिजीज्ड या दे आर सिक, नो दे आर नॉट, दे आर नॉर्मल हेल्दी कंप्लीटली फिट ह्यूमन बींग्स, जिनको हमको कोई भी, इनफैक्ट आई एम श्योर दे आर फिटर देन हाफ ऑफ द पीपल सिटिंग इन द ऑडियंस टुडे। लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी खतरों के खिलाड़ी 13 अभी ऑन ईयर है, बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो बिग बॉस ओटीटी आप कितना फॉलो कर रहे हो, किसे सपोर्ट कर रहे हो? No, I am not following Big Boss OTT at all, but I have few friends inside. I wish Gia wins, but let's see. एंड खतरों के खिलाड़ी ये सीज़न में आई थिंक अरिजीत को मैं जानती हूँ, तो मैं उसे सपोर्ट करूँगी, बट मैंने देखा नहीं अभी तक. But तो ऑब्वियसली यू आर हेल्दी, तब इसके बाद हम आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या कहीं कुछ आपका प्रोजेक्ट? I think last 1.5 साल तो मैंने अपने आप में फोकस किया था, बट looking at the improvement what I've got and you know I'm showing signs physical appearance wise also, मेरे में भी इतनी bloating नहीं होती है, हाथ पैर सूजे नहीं रहते, फेस थोड़ा अच्छा रहता है. So I think वो एक physical improvement भी बॉडी में आया है, thanks to you doctor, and health wise भी I'm doing much better. So I think yeah, now work will happen. I will start my work. I'll resume my work, I should say, in a good way with high hopes. So let's see. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू ऑल. एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अभी जो यूथ है उनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिकॉज अभी हम जंक फूड तो बहुत खाते हैं, हम लोग के खाने पे कंट्रोल नहीं होता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज इतना ईजी हो गया है कि आपके मन में जो इच्छा होगी खाने की वो आपके पास 15 मिनट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा. नॉट ओनली कि भाई वो आइटम, बट जिस जगह का वो आइटम फेमस है वहाँ से भी आ जाएगा आपके पास 1 घंटे के अंदर. सो जब चीज़ें इस हद तक ईजीली अवेलेबल हो गई हैं तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज़ बिकम द नॉर्म. सो इस सिचुएशन में हमें आई थिंक 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने अभी मेरे टॉक में भी कहा कि आपको ये याद रखना है कि हर जो चीज़ आप स्मेल करते हैं, खाते हैं या टच करते हैं, वो आपकी बॉडी में एंटर हुई तो वो आपके लिवर में जाने वाली है. तो आपको सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कहीं पर कोई गंदी चीज़ देख रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि वो आपके बॉडी के अंदर जाके जमा हो? अगर आप कोई तेल में डूबी हुई चीज़ देख रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि वो आपके हार्ट के आर्टरीज में जाके वहाँ से सर्कुलेट हो? नहीं. तो सिर्फ टेस्ट को मत सोचिए, सिर्फ जीभ का मत सुनिए, बल्कि पूरी बॉडी का आपके बारे में आपको सोचना है. तो खाना पीना, एक्सरसाइज, नो अल्कोहल एंड रेगुलर चेकअप्स, आई थिंक ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे? यू नो डॉक्टर जब स्पीच दे रहे थे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है. आई थिंक आई एम अ पेशेंट हु डिटेक्टेड हर डिजीज़ वेरी अर्ली स्टेज पे. वाई आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर कि मैंने ऐसा क्यों बोला. आई थिंक मैं अपने आप का बहुत ध्यान रखती हूँ. मैं हर महीने मेरे चेकअप्स होते हैं एंड आई थिंक वो फेज़ में ना मेरा कुछ, मेरे LFT बहुत ऊपर थे, SGOT SGPT उन्होंने अपनी PPT में दिखाया था, तो दे ऑलवेज हाई एंड आई नेवर अंडरस्टैंड. तो मैं जिसको भी दिखाती थी तो मुझे बोलते थे आप नॉनवेज ज़्यादा खाते होगे, यू नो. तो दवाई लो, वो दब गया, फिर वो वापस हाई हो गया. एंड इट वॉज अलार्मिंग बिकॉज आई डिडंट लिसन टू माई बॉडी, यू नो, एंड दैट्स हाउ it happened. I came to him at a very early stage where he detected and he told me, Sana, there are very few people who get to know at this stage. So feel lucky and feel blessed. So I think, yeah, that's a plus point where he said ki regular checkups, you need to take care of yourself. Your body talks to you, it alarms you. कुछ अगर आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है वो आपको साइंस देगा, तो उसे समझो. थैंक यू. एक विदाउट
हाँ ना सर पर होते सर के साथ करते ना, वो भी ले लीजिए आप, सर के साथ भी करते हैं। मैडम दूसरा मैडम कुठे गेला, दुसरा कुठे गेला त्या? येस सर, नाही खूप गॅप झाला मोठा, एवढं छापणार नाही सर, थोडं जरा या जेव्हा घेऊन तो रिलायन्स येते थोडं इकडे या. हा बस सर, हां चालेल. हाँ एक मैडम का यस सर गिरे बोला बहुत बड़ा खड़े हो जाइए यस थैंक यू. हम एक सोलो मैडम का सोलो करते हैं. ये ले हो गया. हाँ ये नंतर मग परत येईल. हाँ यस यस मैडम यस रेडी. हाँ नाइस. यहाँ पे थैंक यू.